Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today's video is related to bioinformatics and the title of my today's lecture is in silico vaccine designing. And in this video, I will discuss MHC2 epitopes prediction. As you all know that I have started a video series in which I am teaching you that how you will design a vaccine candidate using bioinformatics tools. So in the previous videos, I have discussed the introduction of the entire course, that how you will. I have shown you the introduction of multi-epitope vaccine designing, and I have shown you the methodology. And in the next video, in the part two of that video, I discuss the data retrieval and data mining. In the next video, the part three was about the in silico vaccine designing homology check, and in the last video, I have discussed you the B cell epitope prediction, means the epitope prediction. Okay. And now is the part five. In the part five, I will discuss the MHC2 epitopes prediction. Okay. So I recommend you that watch those videos first, so that you have a clue that what does this MHC2 epitope prediction means, and I'm using this flow. Okay. This was the entire methodology flow, the data retrieval, the homology check, the param analysis, and now is the immune epitope prediction. In the immune epitope prediction, I have shown you the B cell epitope prediction, and in this video, I'm using that B cell epitopes. I'm using that epitopes, and I'm predicting the MHC2 class 2 MHC2 prediction. Okay, epitope prediction. It is also known as T cell epitope prediction. So I'm again telling you, just watch those videos first so that you have a clue that what does this whole scenario means. Okay. So let's start with the videos lecture. Okay. Okay. So as you all know that MHC2 epitope prediction is basically why we are doing it. We are doing it because, in the last video I have discussed the B cell epitope prediction. Okay? And in this video, I'm discussing the T cell epitope. So as you all know that on the T cells, the T helper cells, there are MHC2 receptors and MHC1 receptors in which the antigen binds, and after that they are presented over when the antigens are engulfed by the macrophages and the dendritic cells. After that, they are presented to the T helper cells, and the T helper cells have the receptors of that MHC2 and MHC1, and they are then activated. Okay, you all know about the theory of that whole scenario. Okay, so that's why we are using the MHC2 epitope prediction. Okay, so for that we are using IEDB, Immune Epitope Database. इस इम्यून एपिटोप डेटाबेस के बारे में मैंने आपको जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस जो डेटाबेस है इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एपिटोप्स, प्रेडिक्टेड एपिटोप्स और नॉन एपिटोप्स मौजूद है. Either it is from the B cell epitopes, either it is from the B cell receptors, from the MHC2, MHC1, all are present. Okay, either it is predicted or either it is experimental. Okay, so in this we will just go to the Google. We will type IEDB. After that, we will click on the MHC2 binding. Okay, we are using the MHC2 binding. So we will click on this. A window will appear like this. Okay. Now here is we are not. This is the blank. ये जो है ये साफ होता है. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो हमारे साथ ये वेरुलेंस फैक्टर था एरोलाइसिन. As you all know that I'm using Aeromonas hydrophila, and I'm using the virulence factor of that Aeromonas hydrophila, that is aerolysine exotoxin. Okay, I'm using that to design multi-epitope vaccine. Okay, so हमने फिर ये बी सेल एपिटोप प्रेडिक्शन की थी, हमारे साथ ये आया था. ठीक है, उसके बाद हमने क्या टुडे वी विल यूज दिस सीक्वेंस. ओके, तो इस तरह करेंगे, इसको कॉपी करेंगे. ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद हम जाएंगे और इधर इसको पेस्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया. अब इसके बाद ये जो है आप फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं. आपके साथ एक नोटपैड फाइल और उसमें ये सीक्वेंस मौजूद होते हैं, आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आपके साथ डिफरेंट जो है रिकमेंडेड डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो IEDB यूज करता है एपिटोप प्रेडिक्शन के लिए. ठीक है.
आईईडी रिकमेंडेड को हम यूज़ करेंगे, कंसेंसस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, नेट MHC2 पेन को भी। सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, लेकिन इन सबको मिला के जो सबसे बेहतरीन एल्गोरिथम है वो IEDB रिकमेंडेड 2023 है, ठीक है, MHC2 पेन। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी थ्योरी में आपको अगर बता दूं कि हम ये क्यों करते हैं, ठीक है, तो आपको और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जस्ट आई एम डूइंग दिस स्टेप, देन आई एम शोइंग यू द थ्योरी, ओके। अब ह्यूमन इस तरह करेंगे कि सेलेक्ट फुल HLA रेफरेंस सेट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जो है wait a minute, ये आ जाएगा। अच्छा, ये भी हम करेंगे, ह्यूमन जो है ह्यूमन को लेंगे हैं, ठीक है। ये इधर माउस की भी होती है एलीज, और ह्यूमंस की भी होती है। अब ये देखें HLADRB, तो एक छोटा सा थ्योरी में आपको बता दूं, ये असल में ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये इधर तक होती है, सॉरी, ये मैंने डबल सेलेक्ट किया था तो इसलिए ये इस तरह हो गए हैं। अब इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। ये इस सॉफ्टवेयर में ये जो है ये बिल्ट इन एलील्स होते हैं, ठीक है। ये एलील्स होते हैं जो MHC2 के MHC2 के रिसेप्टर्स को इनकोड करते हैं। अब एक छोटी सी थ्योरी आप अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, अब इसको देखें। पहले इसको देखिए, ये हमारे साथ MHC2 है, इस वाले पोर्शन को देखिए, ये हमारे साथ MHC2 क्लास 2 की रिसेप्टर्स होती है, ठीक है। हम इसको यूज़ करके डिज़ाइन कर रहे हैं, इसकी अल्फा चेन भी है, इसकी बीटा चेन भी है, ठीक है। और इधर एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। तो इधर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है जो हर इंडिविजुअल में चेंज होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल में चेंज होता है, एक जो है मदर से आता है, एक फादर से आता है, ठीक है। डिफरेंट अलीज होते हैं क्रोमोसोम पर, जब वो इनकोड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो है ये अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये देखें, अब हम इस क्लास 2 की बात करते हैं। जैसे आपको पता है हमारे साथ क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है, क्लास 1 भी है, ठीक है। क्लास 1 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब पहले क्लास 2 की बात करें, क्योंकि हम क्लास 2 एपिटोप प्रेडिक्शन की बात करें, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें डीपी रीजन, ये क्रोमोसोम है, इसकी सेंट्रोमियर है, इसमें डीपी रीजन, DQ रीजन और DR रीजन है, ठीक है। तो ये सब जो है इनमें जो क्लास 2 की बाइंडिंग रीजन को, उसके अमीनो एसिड को जो है वो इनकोड कर रही है ये रीजन्स, ठीक है। तो ये देखिए, अल्फा और बीटा चेन भी है, DP DQ DR, ये अलग अलग एलीज है। तो ये मदर में भी होती है, फादर में भी होती है, ठीक है। तो जो चाइल्ड को मिलती है वो एक आइदर मदर से मिल जाती है, आइदर फादर से मिल जाती है, ठीक है। और आइदर इसमें जो है रिकम्बिनेशन हो जाती है, और वो डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट जो है इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जहन में याद रखिए, ठीक है। तो क्या होता है, इस रिसेप्टर को कोड करने के लिए ये जीन्स जो होती है, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि ये जो एलीज होते हैं, ये DRB वाले रीजन है, HLA DQ और DP वाले रीजन, ये सब एलीज जो है ये नॉन है, ठीक है। ये अभी तक एक्सपेरिमेंटली नॉन है, ठीक है। एंटायर ह्यूमन रेस में अभी तक जितने भी सीक्वेंसिंग हुई है ह्यूमंस की, ठीक है, तो उसमें ये नॉन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस एलील्स को एज अ कम्प्लीमेंट्री रख के, ठीक है, उसको उसके साथ जो हम यूज कर रहे हैं ये वाला सीक्वेंस, उसको जो है उसको अलाइन करता है, उसको कंपेयर करता है, और उसमें देखता है कि इनके जो ये जो एलील्स है, इनके सीक्वेंस जो अमीनो एसिड सीक्वेंस जो वो इनकोड कर रहे हैं, उसके साथ इसकी कम्प्लीमेंट्री रीजन बनते हैं या नहीं बनते। तो इसका मतलब है कि इसकी रीजन जो बाइंडिंग रीजन होंगी वो पैराटॉप्स होंगी, और इनमें जो फिल्टर आउट करेंगे तो वो अपने कम्प्लीमेंट्री इपिटोप्स को फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर एक और भी मैं आपको दिखा दूँ तो एक काम किस तरह करता है, ये ब्रेक द सीक्वेंस इनटू ऑल पॉसिबल 15 मार्क्स, ठीक है। ये हमारे इस सीक्वेंस को, इस वाले सीक्वेंस को 15 अमीनो एसिड्स सीक्वेंस में जो है वो तोड़ लेता है, ठीक है। 15 मर्ज मतलब मीन्स 15 अमीनो एसिड, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ईच पेप्टाइड बेस्ड ऑन द मेथड। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, IEDB रिकमेंडेड मेथड यूज कर रहे हैं, जो अल्गोरिथम वो यूज कर रहे हैं, वो अलाइनमेंट करता है और बाइंडिंग एफिनिटी को चेक करता है कि इसमें कितनी बाइंडिंग एफिनिटी हो सकती है, ठीक है। फिर वो कंपेयर करता है वो प्रेडिक्टेड एफिनिटी को लार्ज रैंडमली सेलेक्टेड पेप्टाइड्स को,
और वो सेलेक्टेड पेप्टाइड्स क्या है, वो हमारे ये जो एलील है जो उसने अभी शो की है, ठीक है, वो सारे जो है रैंडमली सेलेक्टेड पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। जब कंपैरिजन के बाद फिर क्या करता है, असाइन अ परसेंटाइल स्कोर, और फिर उसको एक परसेंटाइल स्कोर दे देता है, ठीक है, कि जो इसकी जो बाइंडिंग हो जाती है ना, तो बाइंडिंग को वो हर बाइंडिंग को एक खास स्पेसिफिक वैल्यू देता है, उस वैल्यू को परसेंटाइल रैंक कहते हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली अभी दिखाऊंगा अभी कि असल में ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो जितना कम परसेंटाइल रैंक होगा उतनी ज़्यादा इसकी एफिनिटी होगी, ठीक है, बाइंडिंग एफिनिटी होगी। और फिर हम जो कंसेंसस मेथड यूज़ कर रहे हैं, असल में हम तो आईईडी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंसेंसस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 4 स्टेप्स को देखें, ठीक है। पहले ये ब्रेक करता है, फिर प्रेडिक्ट करता है, फिर कंपेयर करता है, और फिर इन सबको परसेंटाइल रैंक दे देता है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे साथ आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में हम जो है अभी इसको हम फिर आउटपुट में यूज़ करेंगे इस थ्योरी को। अब करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। अब क्या हो गया, हमने ये सारा सीक्वेंस जो है अपलोड कर लिया, हमने आईईडीबी रिकमेंडेड मेथड को चूज़ कर लिया, फिर अपने सारे एलील्स जो अभी तक रेफरेंस सेट्स के सारे एलील्स जो है हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और एज अ डिफ़ॉल्ट 15 अमीनो एसिड को एज अ डिफ़ॉल्ट रख दिया, क्योंकि जो ये हमारे साथ ये MHC2 की जो ये वाली रीजन है वो अप टू मैक्सिमम 15 अमीनो एसिड एज अ कम्प्लीमेंट्री यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए हम 15 करते हैं। तो ये 10 भी यूज़ कर सकते हैं, 11 भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन 15 जो है वो डिफ़ॉल्ट है, एज अ एवरेज है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 15 को, ठीक है। फिर परसेंटाइल रैंक के ज़रिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल रैंक एज इट इज़ रहेगा, और फिर हम उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और हमारे साथ इस तरह के रिज़ल्ट आ जाएँगे, ठीक है। तो अब ये रिज़ल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। अब इससे अपने फ़ायदे की जो अमीनो एसिड्स और इपिटोप्स है वो किस तरह निकालने हैं, ये अभी टेक्निकल बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करके सबको सेलेक्ट कर लेंगे, और कंट्रोल सी के साथ हम इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक फ़ाइल बनाएँगे एक्सेल की फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है। और उसपे हम जो है राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट पे टेक्स्ट पे चले जाएँगे, ठीक है। तो उसको ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये जो है, अच्छा, ये कोर पेप्टाइड्स है, ये जो असल हमारा 15 मर्स है, ये स्कोर है, ये रैंक है, ठीक है। ये वो परसेंटाइल रैंक है। अब ये देखिए हम इसमें अपने एपिटॉप्स को चूज़ करें, किस तरह करेंगे कि हमको कौन-सा एपिटॉप्स चाहिए, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट होते हैं, और हम इसमें अपने इंटरेस्ट की एपिटॉप्स को देखेंगे, ठीक है? अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन 6700 तक जा रहा है, ठीक है? 100 परसेंटाइल रैंक तक जा रहा है, लेकिन हमने कितना परसेंटाइल रैंक लेना होगा, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस आईईडीबी वाले सर्वर ने एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू बताई है, ठीक है? MHC2 के लिए इसकी कट ऑफ गाइडलाइन क्या है कि हम परसेंटाइल रैंक को चूज़ करेंगे आइदर 10 और 10 से कम, ठीक है? 10 परसेंटाइल रैंक तक हम जो है एपिटॉप्स को चूज़ करेंगे, ठीक है? ये जो 0 टू 100 के दरमियान जो 10 में आ रहा है उसको चूज़ करेंगे, और लोअर वैल्यू बेटर बाइंडिंग, जैसे हम आपको कहा MHC बाइंडिंग एफिनिटी IC वैल्यू 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 नैनोमोलर। ये असल में इसमें नहीं है, लेकिन अगर हमने कंसेंसस मेथड या दूसरे मेथड्स यूज़ किए होंगे तो तब ये 100 ये नैनोमोलर आएँगे। लेकिन हमने आईईडीबी रिकमेंडेड यूज़ किए तो उसमें परसेंटाइल रैंक होता है, और जो अदर मेथड्स होते हैं तो उसमें नैनोमोलर्स पे चूज़ करने होते हैं, ठीक है? तो आप इस पे छोड़ें, आप सिर्फ परसेंटाइल रैंक पे ध्यान दें। तो 10 से ऊपर जितने भी एपिटॉप्स होंगे हम उसको इग्नोर करेंगे, और 10 के नीचे जितने भी होंगे या इक्वल हम उसको लेंगे। अब ये देखिए, इसको थोड़ी-सी सॉर्टिंग करेंगे इसकी, तो किस तरह होगा? सबसे पहले हम इसकी जो है इस पे फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? फ़िल्टर के लिए हम क्या करते हैं, अब सब्र करें, हम इसको फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? तो अब हमने फ़िल्टर कर लिया, ठीक है? अब फ़िल्टर साइन आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब परसेंटाइल रैंक के ज़रिए हम कर रहे हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो अब क्या आएगा, इधर जो है हमारे साथ 0.01 से लेके अब हम चाहेंगे कि 10 वाला किधर है, ठीक है? तो 10 वाला इधर, 10 इधर तक है, ठीक है? इधर तक है, ठीक है? तो हम इसको इस तरह जो है एक छोटी-सी हाइलाइट कर लेंगे कि हमें पता चले कि हमारा जो सीक्वेंस है वो इधर तक है, ठीक है?
ये देखिए हम इसको इस तरह कर, अच्छा, ये हमें पता चलेगा 10 इधर तक है, ठीक है। जिस तरह आईईडीबी वाले ने हमें बताया था कि परसेंटाइल रैंक 10 तक रखना है, ठीक है। अब ये देखिए एक छोटी सी और भी छोटी सी एक और स्टेप भी आपने करनी होगी, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें इस तरह के रीजन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है इसको क्या नाम बोलते हैं, अ, मैं वो नाम भूल गया, लेकिन हाँ, अच्छा, रिडंडेंसी, हम रिडंडेंसी को चेक करेंगे। हम इस तरह एपिटॉप्स को लेंगे जो दूसरे एपिटॉप्स में ज्यादा रिपीट ना हो, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम इस एपिटॉप को देखें तो इसमें तो इसमें देखिए VNR EE AQ, ठीक है। इसमें भी ये है और इसमें भी VNR EE AQ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है सिमिलरिटी शो हुई है। तो हम इस तरह एपिटॉप्स लेंगे जिसमें आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी ना हो, ठीक है। हम नॉन रिडंडेंट सीक्वेंसिंग लेंगे, रिडंडेंसी को खत्म करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको लिया और इसको भी लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि वो सिमिलरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह इन 0.01 से लेकर 10 अमाइनो एसिड 10 परसेंटाइल रैंक के बीच जितने भी इपिटोप्स हैं वो सारों पे डायरेक्टली नहीं लेंगे। हम इसमें रिडंडेंसी को खत्म करके जब वो फिल्टर इपिटोप्स आएंगे तब उसको कंसिडर करेंगे। और उसको हम किस तरह करेंगे, तो इसकी एक छोटी सी एक ट्रिक है। इस तरह करते हैं, हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं 10 तक, ठीक है। इसको हम 10 तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है इसमें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आपको ये समझ आ जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आप शिफ्ट पे क्लिक करके इधर तक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर जाएं, इधर इधर आएंगे और इसको इधर भी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे साथ जो है इधर आ गया। अब हम इसको अलग से फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो अलग से फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पे जो है डेटा पे जाके हम इस पे फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद हम इसको सॉर्ट A to Z, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब मैंने कहा था ना कि हमने रिडंडेंसी को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस सॉर्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब ये देखें, हाँ, इसने इन सारे इपिटॉप्स में रिडंडेंट इपिटॉप्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, अगर हमने सारे इपिटॉप्स लिए होते, ठीक है, तो उसमें कितने ज्यादा रिपीट हो गए होते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह का स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अब ये VCG ये अलग है, अब ये भी अलग है, लेकिन इसको देखिए ये सब आपस में जो है सेम है। तो हाँ, ठीक है, तो हम इस सेम सेम को खत्म करेंगे और इसको इस तरह कर देंगे, एक ही हमारे साथ आ गया। अब इसको देखिए ये आपस में सेम है, तो इसको एक को खत्म करेंगे, ठीक है। अब ये आपस में ये सारे सेम है, ठीक है, तो इसको भी इस तरह खत्म करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इधर भी सेम है, आखिर में DRI और ये सब कुछ, तो इधर इसको भी इस तरह खत्म करेंगे, ठीक है। तो रिडंडेंसी हमारे साथ तो जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। एक जो सिमिलर अमाइनो जो एपिटॉप्स है वो हमारे साथ फिल्टर आउट हो रहे हैं, ठीक है। हम इसमें सिर्फ एक ही ले रहे हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 सिमिलर है, तो हम 3 को हटा के एक रख लेंगे। हमें पता है कि अगर हमने एक लेना है तो ये असल में इस तरह होता है, डी के अगर हम इसकी बात करें, ये टी टी टी, और अब ये एक दूसरे के साथ ये सिमिलर है, लेकिन इसकी जो अलील है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो है आ, दो अलील में कॉमन है, ठीक है, तो हम कॉमन वाला ले लेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये देखें, ये वाला सीक्वेंस जो है ये हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 अलील्स में सेम है। तो कोई बात नहीं, हम एक ही ले लेते हैं, अलीस को सारे यूज करेंगे, लेकिन हम एक ही टॉप ले लेते हैं। तो इसलिए इस तरह रिडंडेंसी हमारे साथ खत्म, धीरे धीरे खत्म होती है, ठीक है। अब इसको देखें, इसको थोड़ा सा मैनुअल पार्ट है इसमें, थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा, लेकिन ये सबसे टेक्निकल पार्ट होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम आपने देना होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने सारे अमाइन जो सीक्वेंस है उसकी जो है इसकी इस तरह जो है एक एक इसमें लेना होगा, ठीक है। कॉमन इसमें फिल्टर आउट करना होगा, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं। अच्छा, तो इस तरह हमने सारे जो इपिटॉप्स है उसको जो है रिडंडेंसी को ख़त्म कर लिया, ठीक है। पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और अभी जो है हमने रिडंडेंसी को ख़त्म करके जो फिल्टर आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे साथ कितने इपिटॉप्स आ गए, ठीक है।
इसको तो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो है अच्छा अभी जो है अभी तो हम 5.7 तक पहुंच गए, ठीक है। लेकिन अभी आगे भी जाएंगे और 10 तक जाएंगे, ठीक है, 10 तक जाएंगे। तो इस तरह आपने सब कुछ सारों का करना है, इस तरह सारों का 10 तक आपने जाना है, ठीक है। 10 तक आपने इधर तक करना है, ठीक है। आपने रिडंडेंट प्रोटीन को जो है ख़त्म करना है और एक एक कॉमन प्रोटीन को लेना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे साथ कॉमन प्रोटीन आ जाएंगे, ठीक है। कॉमन प्रोटीन आने के बाद फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपने इस इपिटॉप्स को भी आगे एनालिसिस के लिए ले जाना है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो MHC2 प्रेडिक्शन की ये वाला स्टेप है वो खत्म हो गया है, ठीक है। हम इसको MHC इस तरह करते हैं, ठीक है। MHC जो है टू, MHC2 की एक हेडिंग दे देते हैं कि ये MHC2 की जो इपिटॉप्स है। लेकिन अभी इस इपिटॉप्स की और भी एनालिसिस करनी है, लेकिन अभी हमारे साथ सिर्फ ये प्रिडिक्टेड इपिटॉप्स आ गए हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपने 10% स्कोर तक ही रखना है, ठीक है, 10% इधर तक ही रखना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी और भी बता दूं, ये देखिए, ये हमारे साथ एक इपिटॉप से, तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है अलीज में सेम है, ठीक है। तो हम इसको जो है फिर इस तरह करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको लेंगे आगे एनालिसिस के लिए तो वो 6 वाले अलीज के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो हमारे साथ एक बेहतरीन वैक्सीन कैंडिडेट जो है वो डिजाइन होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी मैनुअल स्टेप करनी होगी, ठीक है। तो इसके साथ आपकी जो है इस तरह की टॉप्स फिल्टर आउट होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम MHC1 की प्रिडिक्शन करेंगे। तो जब हमारे साथ MHC1 इपिटॉप्स और MHC2 इपिटॉप्स आ जाएंगे, उसके बाद तब हम उसकी अलग अलग और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर एक अलग वीडियो होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी भी समझ आ गई है कि हम ये क्यों करते हैं, ठीक है, और ये किस तरह होता है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए जो है आसानी का बनाऊंगा और आपको आपके लिए जो आपके साथ हेल्प भी करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।